Hello children, welcome to the EVS class. I hope you all are good, happy, healthy and safe in your homes. You all must eat healthy food, nutritious food, food which enhances and improves your immunity. Drink lots of fresh water and stay safe. As you all can see, your parents must be telling you, schools are closed and nobody knows in fact that when the schools will open. किसी को नहीं पता है कि schools कब खुलेंगे. So till the time the schools are closed, this is our class. We can chat, we can talk to each other through this medium only. And I sincerely hope that you all are enjoying the classes. जो online classes हो रही हैं, जो videos हो रहे हैं, I do hope that you all are seeing those videos and enjoying them. आपको वो videos देख करके मजा आ रहा है, क्लास जो अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन उसमें भी मजा आ रहा होगा. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी वेटिंग ईगरली टू कम टू स्कूल. एपीपीएस जब पढ़ करके आप आए होगे प्राइमरी से तो आपको लग रहा होगा कि अब हम भी बड़े वाले स्कूल में जाएंगे. बट इट सो हैपन कि आपको अभी तक आर्मी पब्लिक स्कूल में आने का चांस ही नहीं मिला. एंड आई एम ऑल्सो वेरी ईगरली वेटिंग टू मीट यू ऑल इन पर्सन. मेरा भी बहुत मन है कि मैं आप सबसे जल्दी से मिलूं. ठीक है, सबसे जल्दी से मिलूं, हम एक दूसरे को जाने, खूब सारी बात करें, स्कूल में खूब एंजॉय करें. बट टिल द टाइम स्कूल्स आर क्लोज्ड हम ऐसे ही बात करेंगे, है ना. ये भी एक नया स्टाइल है, नया तरीका है. सो वी विल एंजॉय दिस ओनली एट द मोमेंट. ओके, सो let us come back to the class. This is our EVS class and in EVS we are doing lesson number 4 which is my home. Right now you all are in your homes. आप सारे बच्चे अपने अपने घरों में हो. मैंने क्लास में भी बताया था कि हम घर में क्यों रहते हैं. अभी everybody is telling you to stay inside. हर कोई कहता है कि अभी बाहर मत निकलो, अभी घर के अंदर ही रहो. सो हमने पढ़ा था ना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होम. हमने ये पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड होम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. अभी देखो, अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर घर नहीं, जिनके पास, जस्ट इमेजिन, जिनके पास घर नहीं है, दे आर फोर्स टू स्टे आउटसाइड. जिनके पास प्रॉपर घर नहीं होते हैं उनको बाहर रहना पड़ता है. आपके पास घर है, यू ऑल हैव होम, यू ऑल हैव फैमिली, सो यू आर सेफ एंड साउंड इनसाइड योर होम विथ योर फैमिली मेंबर्स. योर फैमिली इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू, टू लव यू. फैमिली के साथ हो अभी सब लोग एक साथ हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर till now we have done different types of rooms in a home. What are the different types of homes in a, what are the different types of rooms in a home? They are drawing room, dining room, bedroom, study room, kitchen, washroom, storeroom. And I told you in some of the homes there is a living room also, apart from the rooms which are given in your book. In some of the homes there is a living room also. Living room where people relax in their free time. अभी सोने का टाइम नहीं है, सोते तो हर समय तो सोते नहीं है. It is not yet time to sleep. अभी खाना खाने में भी टाइम है. तो ऐसे ही जहाँ पे आराम से बैठ करके बातचीत करनी है, टीवी देखना है. सो इन मेनी होम्स पीपल हैव अ लिविंग रूम ऑल्सो where everyone sits in their free time,
बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, गपबाजी करते हैं ना, पीपल चैट, ठीक है। टीवी, बहुत लोग टीवी वहीं पे लगाते हैं, टीवी देखते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन अ होम। ओके, नाउ सी, दिस इज एन activity. Try this. Match the names of the rooms in the given house with the picture. Label the rooms and choose the word from the cloud. You can see this cloud here. The names of different rooms are given in this cloud. इस cloud में अलग अलग rooms के नाम दिए हुए हैं. These are bedroom, study room, kitchen, bedroom, drawing room, bathroom, dining room. Okay, these are the names of different types of rooms. Now in this house, all the rooms are there. You have to match the names of the rooms in the given house with the picture. Okay, now I cannot make the entire drawing. I will just make it like this. Okay. ये ऐसे करके रूम बना हुआ है. This is the house and different rooms are there. Okay. I will just name the rooms. I will, 2 rooms are here, then here, here and here. Okay, so I cannot make the drawing. I will just write the number. This is first room, this is second room, this is third room, this is fourth room, fifth, sixth, 7 and 8. Okay, these are the different rooms. Now first room, what do you see in the first room? There is a bed. So obviously this is bedroom. So first room is the bedroom. Second room, as you can see, wash basin is there. You can see a commode. You can see a shower. You can see a bathtub. So second is bathroom. Second is BATHROOM, bathroom. Then third, you can see is again, what is this? Third, you can see a table is there, bed is there, a lamp is kept on the bed, window, curtains. So this is again a bedroom. So third is also bedroom. आप ये बोल सकते हो कि मैम बेडरूम तो 2 बार आ गया, but here in the cloud also you can see the word bedroom is given twice. Bedroom, study room, kitchen, bedroom, drawing room, bathroom, dining room. Okay. Now see the fourth picture. Fourth picture, you can see cupboards, you can see a microwave, you can see a pan, you can see a fridge. So this is, क्या हो सकता है ये सारी चीजें. Where do we get all these things? We get all these things in a kitchen. So fourth is kitchen. KITCHEN. Fourth is kitchen. Okay. Then fifth. What could it be? Fifth में you can see table, chairs around it. Some pot is kept on the table. So this is the picture of a dining room. So fifth is DINING, dining room. Now sixth picture कहाँ की picture होगी? You can see a washing machine, you can see a trunk, you can see something like a tire, you can see a broom, you can see a drum. While explaining the lesson in my previous video, I explained you that
पीपल कीप देयर एक्स्ट्रा थिंग्स इन स्टोर रूम। जो चीजें अभी काम में नहीं आ रही हैं, जिनकी अभी जरूरत नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग क्या करते हैं, उन सारी चीजों को स्टोर रूम में रख देते हैं। ओके, स्टोर रूम में रख देते हैं, विच में कम यूज लेटर, जिसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में जरूरत पड़ सकती है, और मे बी घर में इतनी जगह नहीं है, तो पीपल कीप सर्टेन थिंग्स इन स्टोर रूम। So this picture is of storeroom. So sixth is your S-T-O-R-E, store room. Then seventh picture, you can all see table is there, computer is there on the table, some books are there on the shelf. So this picture is of study room. So seventh is S-T-U-D-Y, study room. And last picture, you can see sofa, center table is there. Where do you find all these things? Sofa hai, center table hai. Where do you find? We find these things in a drawing room. So eighth picture is D-R-A-W-I-N-G, drawing room. Okay, this was just an exercise. Now fill in the blanks. Dash room is used to entertain our guests. Entertain का मतलब होता है लोगों को बिठाना, उनकी देखभाल करना, to take care of them. When some guests come to your house, आपके घर में जब कोई बाहर से आता है तो आप उनको अच्छे से बिठाते हो. You give them tea, coffee, whatever they wish to drink, जो भी वो पीना चाहें, कॉफी पीना है, टी पीना है, गर्मी का दिन है, some cold drink, some juice, खाने को देते हैं. और we talk to them. Entertain मतलब जहाँ पे उनको हम look after करते हैं. So जब घर में कोई गेस्ट आता है तो where do you make them sit? कहाँ बिठाते हैं हम उनको? मैंने जब रूम्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, then I told you, then when somebody comes to our place, we make them sit in the drawing room. So first is, and fill in the blank, the first is D-R-A-W-I-N-G, drawing room. Okay, first is drawing room. Room is used to relax with the family. Okay, कौन सा रूम है जहाँ पे आप फैमिली के साथ रिलैक्स करते हो? नाउ अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग बेडरूम होगा, बेडरूम में हम रिलैक्स करते हैं. बट यू कैन राइट लिविंग रूम ऑल्सो. जैसा मैंने बताया था कि इन लिविंग रूम पीपल सिट विद देयर फैमिली इन देयर फ्री टाइम, जहाँ पे रिलैक्स करते हैं. सोने का टाइम नहीं है, बेडरूम में नहीं गए, अभी डाइनिंग रूम का भी अभी खाना खाने का टाइम नहीं है, ड्राइंग रूम में हर समय जाके हम नहीं बैठते हैं. सो हियर यू कैन राइट लिविंग रूम ऑल्सो. ओके, LIVING, living room. Okay, so this is about different types of rooms in a home. जो घर में अलग अलग तरह के जो रूम होते हैं, I explained about the rooms. Now we will do different types of houses. Okay, about a house. This is page number 23. Page number 23 of your EVS book. What is the EVS book? Your EVS book is Think Green, Environmental Studies. Page number 23. So, about a house. Two types of houses are commonly found in cities. Commonly मतलब अक्सर, अधिकतर, जो ज्यादातर मिलते हैं. तो सिटीज में हमें किस तरह के घर ज्यादा मिलते हैं? Two types of houses which are commonly found in cities are bungalow or flats oblique apartments. Okay, bungalow जैसे जो बड़े बड़े सिंगल स्टोरी जैसे घर होते हैं, और डबल स्टोरी भी हो सकते हैं. दे आर ह्यूज, बहुत बड़े एरिया में बने होते हैं. दे हैव
लॉट्स ऑफ ग्रीनरी अराउंड, बड़ा बाहर गार्डन है, पार्क है, एवरीथिंग इज देयर. सॉरी, पार्क नहीं है, गार्डन है बाहर, एंड लॉट ऑफ ओपन स्पेस इज देयर. दे आर बिग हाउसेज. जो बंगलोज होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े एरियाज में बने होते हैं. एक सिंगल स्टोरी भी हो सकते हैं, 2 स्टोरी भी हो सकते हैं. बाहर बहुत सारा ओपन स्पेस होता है, देयर इज ग्रीनरी अराउंड, बाहर गार्डन है, सब कुछ होता है. दे आर बंगलोज. और फ्लैट्स, फ्लैट्स लाइक एक के ऊपर एक जो बने रहते हैं. नाउ इन सिटीज लोग बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, इतने ज्यादा लोग हैं, बट अब सबके रहने की तो जगह नहीं है. जो जगह पे जहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, चीजें बन गई हैं, जगह नहीं है. तो नाउ अ डेज फ्लैट सिस्टम इज वेरी कॉमन. इतने बड़े बड़े बंगलोज बनाने की अब जगह नहीं है. ओके, सो नाउ फ्लैट सिस्टम और अपार्टमेंट्स, दे आर वेरी कॉमन नाउ. फ्लैट्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक. ओके, जिसको कि मल्टी स्टोरी भी बोलते हैं. नाउ फ्लैट्स जो है वो 3 स्टोरी भी हो सकते हैं, 4 स्टोरी हो सकते हैं, 5 स्टोरी हो सकते हैं. इन बिग सिटीज इफ यू गो, आजकल जो नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आप देखोगे वहां बहुत बहुत हाई आपको बिल्डिंग्स मिलेगी, जहां पे 60-70 फ्लोर्स तक फ्लैट्स होते हैं. लोग इतनी ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स में भी रहते हैं. ठीक है, सो फ्लैट ऑब्लिक अपार्टमेंट, these are bungalow and these are flats or apartments. As you can see, bungalows बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, एंड जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं, सो दैट स्पेस इज सेव्ड, जिससे जगह बचती है. ठीक है, अभी सब जगह अभी इतनी जगह नहीं है कि इतने बड़े बड़े बंगलोज बना सके. सो पीपल लिव इन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स. फ्लैट्स में 1 बेडरूम का भी फ्लैट हो सकता है, 2 बेडरूम का भी फ्लैट हो सकता है, 3 बेडरूम का भी फ्लैट हो सकता है. ठीक है, सो फ्लैट्स आर मल्टी स्टोरी. इसे बहुत एक के ऊपर एक बहुत कई सारी स्टोरीज हैं. देन जो लोग वहां रहते हैं उनकी पूरी एक सोसाइटी जैसे होती है. दे हैव एवरीथिंग, ऑल द फैसिलिटीज. उनका पार्क भी है, बच्चों के लिए खेलने का पार्क है, स्विमिंग पूल इज देयर, एक्सरसाइज करने के लिए जिम भी है, बहुत कुछ है. बट दैट इज फॉर ऑल द फैमिलीज. वो किसी एक फैमिली को बिलोंग नहीं करता है. जैसे बंगलो तो किसी एक का है, जो भी है सब एक किसी का है. बट इन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स जो वहां पे जितनी भी फैसिलिटीज हैं, दे आर कॉमन फॉर एवरीवन. अभी आप पूछोगे, अभी आप सोचोगे कि बाप रे, जो 68th फ्लोर पे रहता होगा वो कैसे रोज इतनी सीढ़ियां चढ़ेगा. तो इस तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लिफ्ट इज ऑल्सो देयर. ओके, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर पीपल टू मूव अप एंड डाउन. अब अगर किसी को दिन में रोज रोज इतनी सारी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी. ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, लेकिन रोज रोज इतनी सारी सीढ़ियां तो चढ़ना बहुत मुश्किल है. यू आर नॉट फीलिंग वेल, कभी तबीयत खराब हो सकती है, तो इस तरह की बिल्डिंग्स में लिफ्ट होती है. ओके, जिससे कि लोगों को सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम ना हो. अपार्ट फ्रॉम दीज हाउसेस, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज हाउसेस देयर आर अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑल्सो. और भी डिफरेंट तरह के हाउसेस भी होते हैं. नाउ दीज आर, सिंस सिटी में है, दे आर ऑल परमानेंट हाउसेस, पक्का हाउसेस. व्हेन यू गो टू विलेजेस, आप विलेजेस में जाओगे तो ऑफ कोर्स विलेजेस में भी अब आपको पक्का हाउसेस ही मिलेगा. बट स्टिल, जैसे किसी का विलेज कहीं पे आप देखोगे कि बहुत इंटीरियर में है, जहां पे अभी भी बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहां पे आपको विलेज में हट भी मिलेगी. हट, जिसको हिंदी में झोपड़ी कहते हैं. ठीक है, हट, जिसको हिंदी में झोपड़ी कहते हैं, जो कि मिट्टी से बनाते हैं. हट इज नॉट अ परमानेंट और पक्का हाउस. इट इज मेड अप ऑफ मड है, जो ड्राई लीव्स होती हैं. ठीक है, ईंटें हैं, ब्रिक्स, बैम्बू, वुड, ये सारी चीजें मतलब जो इजीली आसपास विलेजेस में मिल जाती हैं,
उन चीजों को लेकर के बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, उसका पूरा फ्लोर पे भी मिट्टी रहती है। सो विलेजेस में आपको ऐसे घर भी मिलेंगे, बट ऑफ कोर्स दीज काइंड ऑफ हाउसेस आर नॉट वेरी लास्टिंग, दे आर नॉट परमानेंट हाउसेस। ये थोड़े समय के बाद खराब होने लग जाते हैं, बिकॉज मिट्टी का बना हुआ है, तेज बारिश हुई मिट्टी पूरी बह गई, तेज हवा चली पूरी लीव्स उड़ गई, ठीक है ना। बट स्टिल विलेज में कभी जाने से हट्स भी मिलते हैं। देन देर आर मूविंग हाउसेज ऑल्सो। नाउ यू विल वंडर कि हाउस कैसे मूव कर सकता है। कभी सुना है चलता फिरता हुआ हाउस, हाउस ऑन व्हील्स कभी सुना है? कभी घर चल के जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। कितना अच्छा होता ना कि अगर घर चलते होते तो हम आराम से घर में बैठे बैठे घर को अपना स्कूल तक लेके चले जाते, हमें स्कूल बस की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कितना अच्छा होता अगर चलने वाले हाउस होते। बट देयर आर हाउसेज ऑन व्हील्स, मूव करने वाले हाउस होते हैं, बट ऑफ कोर्स वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग वैसे घरों में रहते हैं। पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ऑन मूव, जो कि अक्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है, जो एक जगह बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, तो उनके जो हाउसेज होते हैं दे आर लाइक बिग बसेस। जैसे बसेस होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो उनके जो हाउसेज होते हैं वो भी बसेस की तरह होते हैं, बट दे आर लाइक बसेस। बट अंदर से वो जो बसेस होती हैं दे आर लाइक अ होम ओनली। उन बसेस के अंदर किचन भी होगा, बेडरूम भी होगा, वॉशरूम भी होगा, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर, ठीक है। तो जो ऐसे हाउसेज होते हैं उनको कहते हैं कारवां, ओके, उनको कारवां बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज हाउसेज ऑन व्हील्स, ठीक है। देन देर आर, कई बार आप देखते होंगे टीवी में न्यूज देखा, जहां पे घर नहीं होते हैं लोग टेंट में रहते हैं। टेंट देखा होगा, जो कपड़े में, जो हमारे सोल्जर्स भी जहां पे घर नहीं होते पोस्टेड होते हैं बहुत बहुत ऊंची जगह पे, ग्लेशियर में, स्नो में, तो वहां पे क्या होता है जहां पे घर नहीं होते हैं, सो पीपल लिव इन टेंट। लोग वहां पे किस में रहते हैं? टेंट में रहते हैं। ओके, टेंट हाउसेस देखा होगा आपने, जो स्पेशली जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, ग्लेशियर में पोस्टिंग है, आइस पे है, वहां पे घर तो है नहीं बने हुए, तो वो टेंट लगा करके टेंट में रहते हैं। या लोग घूमने फिरने जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, रात हो गई तो टेंट लगाते हैं, टेंट में रहते हैं। सो टेंट हाउसेज आर ऑल्सो देयर। देन इग्लू, इग्लू सच ए न्यू नेम, आपके लिए एकदम नया है ना इग्लू। इग्लू आर द हाउसेज मेड अप ऑफ स्नो। इग्लू क्या होते हैं? इग्लू जो है वो स्नो के बने हुए होते हैं, ठीक है। दे आर समथिंग लाइक, जैसे इग्लू ऐसे करके राउंड से बने होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे उनका ये डोर होता है। एंड दीज आर मेड अप ऑफ, जैसे ये आइस के ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, जो इग्लू होते हैं वो जो स्नो या आइस के बड़े बड़े ब्लॉक से बने हुए होते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस। Igloos are found only in places where it snows throughout the year. जैसे जहां पे पूरे ईयर, पूरे 12 मंथ्स जहां पे सिर्फ आइस रहती है, वहां पे इग्लूज होते हैं, ठीक है, और कहीं पे भी इग्लू नहीं मिलता है। इग्लू जो होते हैं वो पूरे आइस या स्नो के ब्लॉक के बने हुए होते हैं, बट दे आर वार्म फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से वार्म होते हैं, बने हुए वो आइस के होते हैं, बट अंदर से वो बहुत वार्म और कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो द इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो। और जो इग्लू में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एस्कीमोज।
Eskimos. Eskimos. Okay. The people who live in igloos are known as Eskimos. So there are, children, different types of houses. Normally हम सिटी में रहते हैं तो सिटी में हमें या तो बड़े बड़े बंगलोज दिखते हैं और वी फाइंड फ्लैट्स. ओके. या तो आप भी घर में जहां रहते होगे या तो वो सिंगल स्टोरी होगा या एक घर नीचे उसके ऊपर एक घर होगा. सो दे आर ऑल्सो फ्लैट्स. इसे मोस्टली आप रहते होगे 2 houses are on the ground floor and उसके ऊपर 2 houses हैं. So they are also flat system. Okay, they are not bungalows क्योंकि एक के ऊपर एक बना है. तो फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि जितना एरिया है, जितनी जमीन है, उसमें बहुत सारे घर बन जाते हैं. बंगलो एक बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल बंगलो है. फ्लैट्स बनेंगे एक के ऊपर एक तो उतने एरिया में बहुत सारे घर एक साथ बन जाएंगे. ओके. Now next is turn the page. Page number is 2-4. I hope this is clear to you all. जितना मैंने explain किया ये आपको सब समझ में आ गया. Different types of houses. Now, did you know? Many years ago, people used to live in caves. Later, they learned to build small houses to live in. बहुत साल पहले लोग के पास जब रहने के लिए घर नहीं होता था तो कहाँ रहते थे लोग? लोग गुफाओं में रहते थे. केव्स, जंगल में जैसे गुफाएं होती हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, लोग वैसे केव्स में रहते थे बिकॉज दे डिड नॉट हैव हाउस. फिर धीरे धीरे जब उनको घर बनाना आया कि हम घर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें यूज करके बना सकते हैं, देन दे स्टार्टेड मेकिंग हाउसेस टू लिव इन. नाउ घर कैसे बनता है? घर में वॉल्स हैं, घर में रूफ होती है. अ हाउस हैज अ रूफ एंड वॉल. घर पे एक पूरे घर की एक छत होती है, उसकी वॉल्स होती हैं अलग अलग. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल एंड थीव्स. घर हमें किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करता है? हीट से मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंड, रेन माने बारिश, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर एंड थीव्स. एंड राइट नाउ अभी हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? सबसे डेंजरस चीज कोरोना वायरस. अभी हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा प्रिकॉशन है टू स्टे इन आवर हाउसेस. घर में रहो, घर से बाहर नहीं निकलो, घर से बाहर नहीं निकलो, घर में रहो. एवरीबडी इज सेइंग दिस. व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी इन्फेक्शियस. बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैल रहा है. तो अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टू स्टे इनसाइड आवर होम्स. सो अभी तो हमें हाउस हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल और थीव्स के साथ साथ कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्ट कर रहा है ना? सो वी कैन से अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल, थीव्स एंड कोरोना वायरस. सिटीज में तो वाइल्ड एनिमल्स उतने नहीं आते, बट स्टिल एनिमल्स आर देयर. स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो सड़क पे घूमते हैं. इंसेक्ट्स आर देयर. ठीक है ना? सो हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, insect bites and most importantly as of now कोरोना वायरस. इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है कोरोना वायरस. ओके. इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम विंड, स्टॉर्म एंड स्नो. जब बहुत तेज हवा चलती है, तूफान आता है, बर्फ गिरती है, उससे भी हमें हाउस प्रोटेक्ट करता है. देखा है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े बोर्ड भी उड़ जाते हैं, घर की छत उड़ जाती है, जो कच्चा हाउसेज होते हैं, तो उससे भी बहुत लोग इंजर्ड होते हैं. तो हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. ओके. इट हेल्प्स अस टू स्टे वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. घर हमें विंटर में वार्म रखता है एंड समर्स में कूल रखता है. कैसे वार्म रखता है? विंटर्स में हम ब्लोअर चला के रखते हैं, हीटर चला के रखते हैं. बहुत लोग घर के अंदर विंटर्स में वो आग जलाते हैं, आग सेकते हैं. तो उससे क्या होता है? द हाउस इज वार्म फ्रॉम इनसाइड.
एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि व्हेन देयर आर पीपल इनसाइड द हाउस, जब घर के अंदर लोग होते हैं तो उनकी भी एक वार्मथ होती है, उससे भी घर वार्म रहता है। एंड कूल इन समर, समर में कूल रहता है, गर्मी होती है तो हम एयर कूलर चलाते हैं, फैन चलाते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, घर हमारा वार्म रहता है। आई होप चिल्ड्रन वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टिल नाउ इज क्लियर टू यू ऑल। जितना मैंने अभी तक समझाया है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फर्दर। इसके आगे का और भी हमें हाउसेस की क्यों जरूरत है, व्हाई हाउसेस आर इम्पोर्टेंट टू अस, आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। So today I will stop here, children. Thank you so much. Thank you for joining me and thank you so much for watching the videos. Okay? Thank you.